नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। स्वीकृत मकान को तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का आग्रह। शोभा करलदांजे उडुपी चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। मणिपुर से मुंबई तक 14 जनवरी 2024 से राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? निर्माण में पूरे देश का योगदान, बिफरे संजय राउत। तमिलनाडु के एन्नोर में अमोनिया गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पीछे धमाके। देखते समाचार विस्तार से। अनुसूचित जाति से संबंधित बीदर तालुके के अमलापुर गांव की निवासी लक्ष्मी अंबादास को वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर आवंटित किया गया। हितग्राही क्रमांक KN 1552364227 दिनांक 29 नवंबर 2023 को जारी आदेश पत्र में ग्राम पंचायत अमलापुर के सचिव ने सूचित किया है कि यदि 30 नवंबर 2023 तक भुगतान नहीं किया गया तो स्वीकृत धनराशि वापस कर दी जाएगी। अंबादास के पिता को आवंटित 3 एकड़ 38 गुंठे भूमि पर बेसमेंट तक निर्मित मकान का समतलीकरण द्वारा किया गया है। निर्माणाधीन मकान को जमींदोज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और मकान बनाने के लिए जिला आयुक्त, सहायक आयुक्त, तहसीलदार, वन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष को शिकायत दर्ज कराई गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर डिस्ट्रिक्ट चिड़गांव समाज के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एक दिन की भूख हड़ताल का आह्वान किया गया। साथ ही मांगे नहीं मनाने पर आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाने की चेतावनी दी गई। मांगों और आंदोलन को लेकर डॉक्टर प्रणवानंद स्वामी जी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय ने। ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 10:50 ಆಯಿತು। 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಿಗಮವನ್ನೇ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ। ಎರಡನೇದು ಈಡಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ST ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ST, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ SC ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ST ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮೂರನೇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 ಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। ಟೋಟಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ನಿಗಮ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ನಿಗಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 18 ವರ್ಷ ಕಾಲವಾಗಿದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೇ ಆಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಯಾವುದೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ನಗರಕ್ಕಾಯಿತು, ಅನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿಗಮವನ್ನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದು ಸಮುದಾಯ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ। ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಟಕಣನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಬಾಲ್ಕುಂದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು।
ईडिगा समाज के द्वारा भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है और ऐसे में कई प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के राज्य सरकार के विरुद्ध ये भूख हड़ताल आज की जा रही है। क्या कुछ मांगे हैं स्वामी जी से ही जानते, वो हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी जिसको लेकर के आज आपने भूख हड़ताल का आह्वान किया है। देखो, कर्नाटका, पूरा कर्नाटक में हमारा कम्युनिटी ईडिगा बिल्लावा नामधारी कम्युनिटी 17 लोग कर्नाटका है। आज तक हमारा बहुत कर्नाटका सरकार में सामने हम बहुत डिमांड रखा है। पहले ब्रह्मश्री नारायण गुरु डेवलपमेंट बोर्ड और बीजेपी सरकार अनाउंसमेंट किया 2022-23 लास्ट गवर्नमेंट में। अभी तक वो 500 CR को हम डिमांड किया, ये पूरा समाज का डेवलपमेंट के लिए। आज तक सिद्धरामैया गवर्नमेंट नहीं अनाउंस कांग्रेस पार्टी को तो उनकी मांगों को मानना होगा 100%। देखो, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, कारवार डिस्ट्रिक्ट एंड मंगलूरु डिस्ट्रिक्ट दोनों हमारा टिकट चाहिए। कांग्रेस पक्ष MP के चुनावणी को हमारा कम्युनिटी का टिकट देना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। कांग्रेस हाईकमांड सामने हम रखा है ऑलरेडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे स्वामी जी जिन्होंने ईडिगा समाज से जुड़ी तमाम मांगों को हमारे बीच में रखा और साथ ही ये भी जानकारी साझा की कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की जाएगी तो आने वाले वक्त में इस आंदोलन को और भी ज़्यादा अग्र किया जाएगा या कहें कि और भी ज़्यादा तीव्र किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP न्यूज़ बीदर। 2024 के संसदीय चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं। उडुपी चिकमंगलुरु लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के टिकट के कई दावेदारों के नाम चर्चा में हैं। इनमें प्रमुख है पूर्व मंत्री प्रमोद माधवराज, पूर्व विधायक CT रवि और DN जीवराज। यहां हाल ही में एक समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रवि से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था और उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। उडुपी के माधवराज पिछले 2 महीनों से जिले के मलनाड क्षेत्र में पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने गणेश चतुर्थी और विजयदशमी उत्सव कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया और पार्टी हाईकमान की मंजूरी मिलने पर खुद को संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को बेंगलुरु उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के वक्कलिगा के गढ़ से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वर्तमान सांसद DV सदानंद गौड़ा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि करंदलाजे को पिछले कुछ दिनों से दत्त जयंती उत्सव के लिए चिकमंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं, उत्सुक नहीं है शोभा यात्रा से। इधर उन्होंने उडुपी चिकमंगलुरु से फिर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। शोभा ने कहा कि मैं निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्यों के लिए केंद्रीय धन लाया। मेरे प्रयासों के कारण उडुपी और चिकमंगलुरु में 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल स्थापित किए गए, एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया है और कॉलेज को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अनुदान जारी किया जा रहा है। सभी राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत किया जा रहा है। जिले में सड़क, रेलवे और पेयजल सुविधाएं विकसित करने के लिए परियोजनाएं लागू की गई। KPCC प्रवक्ता SM पाटिल गनिहारा ने विधायक बसनगौडा पाटिल यत्नाल से पूछा कि चिंचोली में चीनी कारखाने के निर्माण के लिए पैसा कहां से आया। वह विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बात कर रहे थे। सिद्धश्री सहकारी बैंक लेन देन और सभी का खुलासा किया जाना चाहिए और विधायक यत्नाल द्वारा उनकी शुद्धता साबित की जानी चाहिए। लोगों के मन में यत्नाल के प्रति सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनका सम्मान बढ़े, इसीलिए उन्हें बताना चाहिए कि जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तब उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब कितनी संपत्ति है। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದೀವಿ, ತಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇದ್ದೀರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಏನ್ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತೇನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು। ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ। ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 2,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರ್ಯಾರ ಹಣ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜನರದು ಬಹಳ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಜನ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से 6,200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। आज यहां इसका खुलासा करते हुए
एआईसीसी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारत न्याय यात्रा को 14 जनवरी को इम्फाल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। न्याय यात्रा देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए होगी। वेणुगोपाल ने कहा, 21 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद की राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा चरण पूर्व से पश्चिम तक करना था। यह निर्णय लिया गया कि गांधी को यात्रा का दूसरा चरण इम्फाल से मुंबई तक करना चाहिए। मणिपुर को शुरुआती बिंदु के रूप में चुनने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मणिपुर राज्य देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्टी मणिपुर के लोगों के घावों को ठीक करने की प्रक्रिया भी शुरू करना चाहती है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत राम मंदिर के सवाल पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? राम मंदिर के वे मालिक हैं क्या? राम सबसे बड़े हैं, राम से बड़ा कोई नहीं है। संजय राउत ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या की लड़ाई 2014 से पहले हुई थी। जो लोग राम मंदिर के संघर्ष में नहीं थे, उन्हें क्या पता कि बाल ठाकरे का क्या योगदान था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए अपशकुन है। देखिए जम्मू कश्मीर, मणिपुर में क्या हो रहा है। डीवीएम है, इसीलिए बीजेपी है। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारी अस्मिता और आस्था का विषय है। राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। उन्होंने कहा कि हजारों कार सेवक शहीद हुए और हजारों कार सेवकों को फेंक दिया गया था। हमने देखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है। उन लोगों को इतिहास मालूम नहीं है कि अयोध्या की लड़ाई 2014 के पहले हुई है। जो लोग न देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, न किसी आंदोलन और संघर्ष में रहे हैं, तो उन्हें राम मंदिर का संघर्ष क्या पता, उसमें बाल साहब ठाकरे जी का क्या योगदान रहा। उन्होंने कहा, हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं हैं, हम आखिरी तक लड़ते रहे हैं। यह लोगों के आस्था का विषय है। राम सबसे बड़े हैं और राम से बड़ा कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका इतिहास 2014 के बाद बताती है। वह अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते हैं। तो अगर हिंदुत्व की यह नई व्याख्यान उन्होंने बनाई होगी तो हमें मंजूर नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। तमिलनाडु के एन्नोर में अमोनिया गैस का रिसाव की खबर है। एन्नोर के सब सी पाइप में यह गैस रिसाव हुआ। अमोनिया गैस का रिसाव होते ही पूरे इलाके में तेज गंध फैल गई और लोगों में हड़कंप मच गया। इसके तुरंत बाद इस गैस लीक को काबू में किया गया। जहां से गैस लीक हो रही थी, वहां मरम्मत कर गैस लीक को बंद किया गया। इस बीच अमोनिया गैस की चपेटे में आए 5 लोगों को बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां वे अब ठीक है। अवाड़ी के संयुक्त आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हालात स्थिर है। एन्नोर में अब गैस का रिसाव नहीं हो रहा है। अफरा तफरी में घर से बाहर निकले लोग भी घर वापस आ गए हैं। इलाके में मेडिकल टीम और पुलिस मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पीछे खाली पड़ी जमीन पर धमाके की खबर सामने आई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक कॉल आया, जिसमें एक शख्स ने धमाके की बात कही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर स्पेशल सेल की टीम भी भेजी जा रही है। इजरायली दूतावास ने भी कहा है कि शाम 5:10 पर आसपास दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड को 5:45 बजे धमाके की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फायर अधिकारी के मुताबिक धमाके जैसी घटना की मौके पर पुष्टि नहीं हुई है और न ही धमाके के कोई साक्ष्य मिले हैं। पूरे एरिया की छानबीन की गई है। पुलिस लगातार पूरे एरिया की छानबीन कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी अभी मौके पर मौजूद है।
दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में बुधवार सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के कारण कोहरे से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद लिपटा नजर आ रहा है। कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग कार्यालय ने बुधवार और बृहस्पतिवार को आसमान साफ रहने और सुबह में घने से बहुत अधिक घने कोहरे का अनुमान जताया है। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, चंडीगढ़ में बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। इन जगहों पर 31 दिसंबर तक घना कोहरा जारी रहेगा। अफ्रीकी देश कांगो में बड़ा और बारिश के कहर से हाहाकार मच गया है। लोगों के घर, मकान, दुकान और संस्थान बाढ़ और बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। अब तक 22 लोगों की इस भीषण तबाही में मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश जारी है। एक स्थानीय अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अफ्रीकी देश कांगो में भरी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। कासाई सेंट्रल प्रांत के गवर्नर जॉन काबे ने बताया कि कानगा जिले में घंटों तक हुई बारिश ने कई घरों और निर्माण स्थलों को तबाह कर दिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 17 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी और मंगलवार को 5 और लोगों की मौत की पुष्टि की गई। काबिया ने कहा, दीवार गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। सभी बिकुक में एक ही परिवार के सदस्य थे। भारी बारिश से कांगो के कुछ हिस्सों में अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इससे पहले मई में पूर्वी कांगो के दक्षिण किवू प्रांत में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेते एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया और संदेह जताया है कि मंगलवार को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला हो सकता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजरायली के दूतावास के पास मंगलवार शाम एक विस्फोट हुआ और घटनास्थल से इजरायली राजदूत को अभद्र भाषा में संबोधित एक चिट्ठी बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस विस्फोट के संबंध में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाई नीर ने कहा, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शाम करीब 5:48 पर दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा टीम अभी भी स्थिति की जांच कर रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) ने ट्रैवल एडवाइजरी इसी घटना के मद्देनजर जारी किया है। इजरायली नागरिकों से भीड़भाड़ वाले स्थानों, मॉल अथवा बाजार पर जाने से बचने तथा ऐसे स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। हार्ट अटैक से स्टंट मास्टर की मौत। 900 से ज्यादा फिल्मों में धांसू स्टंट के लिए थे मशहूर। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, केएल राहुल की ऐतिहासिक पारी, सेंचुरियन में जड़ा शतक, तोड़ दिए कई बड़े रिकॉर्ड। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 71,600 के पार निकला। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। स्वीकृत मकान को तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का आग्रह। शोभा करलदांजे उडुपी चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। मणिपुर से मुंबई तक 14 जनवरी 2024 से राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? निर्माण में पूरे देश का योगदान, बिफरे संजय राउत।
तमिलनाडु के इन्नौर में अमोनिया गैस रिसाव से मचा हड़कंप, 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पीछे धमाके। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 धन्यवाद।